કેમ છો મિત્રો? આપણા વાઇલ્ડ લાઈફ વેબિનારના બીજા દિવસે હું ઋષિ પાઠક અમદાવાદથી તમારું સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આ બીજા વાઇલ્ડ લાઈફ વેબિનારના બીજા દિવસે આપણી સાથે છે કો એક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથનના શ્રી જયદીપ મહેતા, જેને મધ્ય ગુજરાતમાં અજગર બચાવવા માટે ખૂબ ઉમદા કામગીરી કરી છે, જે ખાલી ગુજરાત કે અમદાવાદ પૂરતી નહીં, આખા દેશમાં જાણીતી છે. તો એમનો વધુ સમય ન બગાડતા હું એમને જ કહું છું કે હવે પ્રેઝન્ટેશનની એ શરૂઆત કરે. શ્રી જયદીપ મહેતા. નમસ્કાર મિત્રો. સૌથી પહેલા તો પરિચયની તો ખાસ કોઈ જરૂર છે નહીં, કારણ કે કામ જે છે તમારું એ મહત્વનું છે. મારા જે ટોપિક જે છે, જો કે અજગર એક એવો વિષય છે કે જે મોટાભાગે જો રિસર્ચ ફિલ્ડની વાત કરું તો એ સાપ કે પ્રજાતિ એની સાથે કામ કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. એના માટે જે એનું બિહેવિયર જે છે કે જેવા હેબિટેટની અંદર રહે છે એ એના માટે વધારે કારણભૂત છે. કારણ કે સૌથી પહેલા તો બહુ ઓછા લોકો એવા હશે કે જેમને પાયથનને ખુલ્લા જંગલ વિસ્તારમાં કે વાઇલ્ડમાં જોયો હશે. ઘણા ઓછા લોકો હશે. અને સાથે સાથે નોક્ટર્નલ એનિમલ છે. હવે મારું જે હું અને જે મારી ટીમ જે કામ કરી રહી છે એમાં ખાસ કરીને એના હેબિટેટનું કન્ઝર્વેશન અને એના બ્રીડિંગના મોનિટરિંગ ઉપર અમારું મેઇન ફોકસ છે. હેબિટેટને કઈ રીતે આપણે એની સ્ટડી કરીને એના કન્ઝર્વેશન ઉપર આપણે આગળ જઈ શકીએ. સાથે સાથે કમ્યુનિટી, કેમ કે મારો પોતાનો જે અનુભવ હું તમને જણાવું તો કદાચ હું એવું માનું છું કે કમ્યુનિટી જે છે, લોકલ સ્થાનિક લોકો જે છે કે જે લોકો સતત વન્ય પ્રાણીઓની આસપાસ રહેવાનું હોય છે, આ શહેરી વિસ્તારની વાત નથી, જ્યાં સુધી એમને આપણે કન્ઝર્વેશનની અંદર ઇન્વોલ્વ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એ જે કામગીરી જે છે એ કામગીરીની અંદર આપણને કોઈ પણ પ્રકારનું રિઝલ્ટ જે છે એ સંતોષકારક રિઝલ્ટ નથી મળવાનું. એટલે કમ્યુનિટીની જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કન્ઝર્વેશનની અંદર એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને એની સાથે સાથે કમ્યુનિટીનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એના થ્રુ આઉટ એ જ્યારે જે એમને એજ્યુકેટ કરશું આપણે, જ્યારે એમને અવેર કરશું, ત્યારે એ લોકોને ખ્યાલ આવશે કે એમની આસપાસ જે વન્યજીવો છે એમને કિંમત ખબર પડશે, કે મહત્વ સમજાશે. અને એ દિશામાં પણ અમારી જે ખાસ કામગીરી જે છે એ રહી છે. મોટાભાગે જે અત્યારે અમે ગૌરવ સાથે કહેતા હોઈએ છીએ કે સેન્ટ્રલ ગુજરાતમાં અમદાવાદ જિલ્લાનો જે વિરમગામ અને જે આસપાસનો વિસ્તાર છે એને ઘણા બધા લોકો છે કે જે પાયથન ટાવરના નામથી ઓળખે છે. એનું કારણ ને એનો જે શ્રેય છે એના માટે પણ કદાચ મારી ટીમ તો છે જ, જે એની સાથે સાથે લોકલ કમ્યુનિટી અને જે અમારું જે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે કે જે સતત એમાં કાર્યશીલ હોય છે. હવે આજે જે મારે વાત કરવાની છે તેમાં ઝડપથી ટોપિક ઉપર જતા સૌથી પહેલા તો થોડો બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન છે મારી પાસે, જે લગભગ આ ફિલ્ડની અંદર જે કામ કરે છે એમને ખ્યાલ જ હશે. સૌથી વધારે જો વાત કરવામાં આવે કોઈ પણ રેસ્ક્યુઅર તરીકે, હું પોતે પણ રેસ્ક્યુની કામગીરીમાં ભાગ લઉં છું અને એમાં કામ કરતા હોય છે, રેસ્ક્યુઅર અમારું પણ હોય છે. તો કોઈ પણ સ્નેક રેસ્ક્યુઅર છે તેનું એક સપનું હોય છે કે ક્યારેક અજગર પકડવા મળે. તો આ સાપ પાછળ જે લોકોની જે મેડનેસ કહીએ કે જે એક એક્સાઇટમેન્ટ જે હોય છે એ નોર્મલી સાપ રેસ્ક્યુ કરતા હોઈએ તો જ્યારે એ રેસ્ક્યુઅરને કોઈ પણ સ્નેક રેસ્ક્યુઅરને જ્યારે એવું ધ્યાનમાં આવે કે એવો કોઈ કોલ મળે કે જે અજગર છે, કે પાયથન રેસ્ક્યુ માટેનો કોલ આવેલો છે, તેની ખુશીનો કોઈ પાર નથી હોતો કે ચલો આજે હું પાયથન રેસ્ક્યુ કરીશ. હવે રેસ્ક્યુ વર્ક એવું છે કે જેની કદાચ જો વ્યાખ્યા આપવા બેસીએ કે ડેફિનેશન આપવા બેસીએ તો સ્થળ, પરિસ્થિતિ અને સંજોગ અનુસાર અલગ અલગ થતી હોય છે. અને એના માટે ઘણા સમયથી ઘણી બધી ડિબેટો પણ સાંભળેલી છે. ઘણા બધા લોકોના મંતવ્યો કે જે વર્ષોથી આની અંદર કામ કરે છે એમના પણ જે રિવ્યુ જે છે એ જોયેલા છે કે રેસ્ક્યુ કોને કહેવાય, કે પ્રોપર રેસ્ક્યુ કઈ રીતે થઈ શકે. એની ગાઈડલાઇન્સ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ જોયેલી છે. અલગ અલગ ગાઈડલાઇન્સ હોય છે, એના પ્રોટોકોલ અલગ અલગ હોય છે. તો મારે જે વાત કરવી છે, ખાસ તો જે મારે ભાર મૂકવાનો છે, બ્રીડિંગ બાયોલોજી ઉપર થોડું બ્રીફ આપીશ, કારણ કે એ મારો પસંદનો વિષય છે અને અત્યારે જે કામગીરી જે અમારી જે ચાલી રહી છે બ્રીડિંગ મોનિટરિંગની એ પણ ત્યાં છે.
થોડું હિન્દી અને ગુજરાતી બંને મિક્સ કરવું પડશે હવે. सो ब्रीडिंग मॉनिटरिंग का जो काम है हमारा, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक वैसा ही है कि कुछ एक्सपेरिमेंट उसमें ज़्यादा करना नहीं है। और मेनली जो हमारा जो मेन एम जो है वो यही है कि स्पीशीज वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ हमें मॉनिटरिंग करना है कि भाई हाँ ये इस हिसाब से यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, तो वहाँ पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेनली जो हम लोगों का जो टारगेट जो रहता है वो है उसमें थोड़ा बहुत भी अगर हम बोल सकते हैं कि मैन मेड जो चेंजेस है, लाइक उसमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया है हमने। और उसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत हम लोग अपने लेवल से कर सकते थे, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो वो उसमें मेन टारगेट है। और उसकी वजह से अभी रिजल्ट भी हमारे पास बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट सक्सेस रेशियो जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा है उसके लिए। और लास्ट 4 साल से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए एक दो प्रेजेंटेशन है मेरे पास। और दूसरा जो स्नेक रेस्क्यूअर का जो कम्युनिटी है हमारा, वो शायद बहुत बड़ा कम्युनिटी है कि वहाँ पे काफ़ी रेस्क्यूअर्स जो है, आई थिंक आप कोई भी छोटे गांव में जाओगे या फिर कहीं पे भी जाओगे, तो आपको 10 या 20 बंदों में एक बंदा तो ऐसा मिलेगा जो सांप को पकड़ता है या फिर हैंडल करता है। और पर्सनली लास्ट 7 साल का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अगर पाइथन के बारे में अगर कुछ बात करनी हो, तो उसमें मैं एक चीज यही बोलूंगा कि आपको एज अ रेस्क्यूअर, आप जब दूसरे स्नेक्स को हैंडल करते हो, पाइथन के अलावा जो दूसरे सांप है, वेनमस, नॉन वेनमस और पाइथन, तो इन दोनों में हैंडलिंग का जो टेक्निक है वो पूरा का पूरा अलग है। लाइक वैसा नहीं है कि हाँ जैसे हम दूसरे स्नेक्स को हैंडल करते हैं वैसे नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं। और मेन चीज एक ये है कि कहीं पर भी रेस्क्यू के लिए आप जा रहे हो, तो एज अ रेस्क्यूअर एक तो मेन जो हमारा काम है कि उसको डेंजर जोन से निकाल के उसका जो सेफ एनवायरनमेंट है वहां पे हमें उसको पहुंचाना है, या फिर वहां पे हमें उसको छोड़ना है। पर मेनली उसके वो जो पूरा प्रोसेस है जहाँ से हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे हम उसको छोड़ते हैं, इस दोनों के बीच का जो प्रोसेस है ना, उसे पूरा का पूरा मैं रेस्क्यू वर्क या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का डेफिनेशन देता हूँ। कि जब तक आपने जो एनिमल रेस्क्यू किया है उसको आप जब तक रिलीज नहीं करते उसके प्रॉपर हैबिटेट में, तब तक आपका रेस्क्यू वर्क खत्म नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिए। और दूसरा, कभी भी कहीं पर भी हम लोग अगर रेस्क्यू के लिए जाते हो, ये सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, कोई भी एनिमल हो, तो सबसे पहले आप उसका जो बिहेवियर है उसको अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे या फिर उसको पहचानने की या समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो भी रेस्क्यू में बहुत हेल्पफुल रहता है। और उसके लिए एक रेस्क्यूअर के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन क्या चाहिए, और मेन जो हमारा फोकस है वो है हैंडलिंग। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में जो काफ़ी आए दिन पोस्ट देखने को मिलती रहती है, वीडियोज और फोटोग्राफ, कि लोग जिस हिसाब से उसको हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये एक ऐसा एनिमल है जो अगर थोड़ी बहुत भी हमें गलती करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से चांस पे चौका मारेगा ही मारेगा। और ये नहीं करना, क्योंकि जब पब्लिक के बीच में हमारे पर ड्यूरिंग रेस्क्यू वर्क अगर एनिमल का अटैक होता है या फिर वो हमें डैमेज करता है, तो उसमें ऑलवेज एक ही चीज निकल के बाहर आती है, और वो यही है कि जो ब्लेम है जो पूरा का पूरा वो एनिमल पे ही चला जाता है। क्योंकि रेस्क्यूअर जब वहां पे जाता है तो उसको कुछ वैसा कुछ नहीं रहता है, लोग यही समझते हैं कि ये बंदा तो बचाने के लिए आया, पर जो एनिमल है उसको नहीं पता है ये चीज। सो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है उसके लिए। एनिमल का बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। और हर एक एनिमल का प्रॉपर पर्टिकुलर बिहेवियर जो है, अगर उसको हम समझते हैं, तो वो एक चीज ऐसी है कि जिससे हमें रेस्क्यू में काफी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले थोड़ा जो ब्रीफ है वो मैं उसके लिए देना चाहूंगा। मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। सो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे कि पाइथन का जो लाइफस्टाइल कैसा है, कि लाइक पाइथन जिस हिसाब से हमें समझना है, क्योंकि आजकल जो गूगल का जो टाइम है तो सबको पता ही रहता है कि भाई हाँ इतनी इतनी चीजें हैं जो काम करती है इसमें। पाइथन इकोलॉजी पूरा जो पाइथन का जो लाइफस्टाइल है उसमें, उसके ऊपर हमें जाना है अभी। और आप लोगों को शायद स्क्रीन में दिख भी रहा होगा अभी।
प्रेजेंटेशन जो है मेरा, उस हिसाब से। हाँ, पाइथन की टोटल 1700 जो स्पीशीज वाइज अगर हम लोग साइंटिफिक में ज्यादा उतना नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर वैसा ही है कि सबको सिर्फ यही मेनली जो है, मेरा मुझे जो काम दिया गया है वो यही है कि ब्रीफ जो है पाइथन का वो हमें देना है उसमें। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पाइथन एक नॉक्टर्नल एनिमल है, और उसके साथ साथ जो उसका हंटिंग का जो प्रोसेस है, ब्रीडिंग का जो बिहेवियर उसका है, उसके साथ साथ किस हिसाब से वो सर्वाइव करता है, क्योंकि लास्ट 7 सालों से हमारा जो काम चल रहा है तो उसके हिसाब से काफी फैक्ट्स और सीक्रेट्स भी ऐसे हैं कि जो हमें देखने को मिले हैं पाइथन में। तो उसके हिसाब से अगर हम आगे चले, हमें जो बेसिक स्कीम्स या फिर बेसिक जो पॉइंट आउट है वही मैं निकाल रहा हूँ अभी इसके लिए। आप जो देख सकते हो उसमें जो स्लाइड है वो एक चीज अगर हेमिफिनस को छोड़ के हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, जब भी उसका जो आइडेंटिफाई करना हो कि भाई हाँ, पाइथन को कौन से जो कैरेक्टर है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्राइंगुलर हेड है उसका, और उसके साथ साथ पिंकिश ब्राउन जो हेड के आगे का जो पार्ट रहता है वो पूरा का पूरा थोड़ा पिंकिश रहेगा। और ये चीज उसमें एक नोट की हुई है कि जो हैबिटेट है उसका या फिर जो पाइथन का जो हेल्थ है उसके हिसाब से उसका शाइनिंग रहता है जनरली। ये चीज हमने नोट किया हुआ है। और उसके साथ साथ जब भी वो मोल्टिंग के लिए जो रहता है, स्किन रिमूविंग का जो टाइम रहता है, तो तब भी ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा एकदम डल हो जाता है। तो ये ट्राइंगल हेयर जो है उसके साथ साथ हैवी बॉडी जो उसका है। और वैसे पाइथन को आइडेंटिफाई करने में ज्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, एक ही नजर से हम लोग पहचान सकते हैं। कोई ऐसा होगा जो मिस आइडेंटिफाई करता होगा कि ये पाइथन, और उसके लिए रीजन जो है, एक तो रसल स्वाइपर है उसके लिए, और उसके साथ साथ कॉमन सेंस हुआ, क्योंकि जनरली जब स्टार्टअप में हम लोग काम कर रहे थे तो एक चीज ये था कि कॉमन सेंस हुआ जो है वो और पाइथन का दोनों का हैबिटेट वो सेम हैबिटेट वो शेयर करते थे। तो जब भी कॉमन सेंस वो लोगों को दिखता है तो वो लोग हमें फोन करते थे कि पाइथन का बच्चा हमें यहाँ पे मिला। जब रेस्क्यूअर्स वहां पे पहुंचते थे तो पता चलता था कि ये बेबी पाइथन नहीं है, पर उसका जो सेम लूप जो है दूसरे स्नेक का वो कॉमन सेंस बोआ निकला है। और अभी जनरली लोगों में इतना अवेयरनेस है कि आइडेंटिफिकेशन में भी वो लोग ज्यादा मिस आइडेंटिफाई नहीं करते, और उनको पता चल ही जाता है कि हाँ, यही पाइथन और ये कॉमन सेंस बोआ है। और उसके लिए भी अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा जो है हैबिटेट, सबसे ज्यादा मेनली जो पाइथन का जो हैबिटेट जो है तो ग्रासलैंड है एक तो, कि ग्रासलैंड के साथ साथ रेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है, सेमी डेजर्ट और सेमी एरिड एरिया की तो ऑलमोस्ट कुल मिला के अगर बोले तो कोई ऐसी जगह लाइक सर्वाइविंग स्किल के हिसाब से हम सोचे तो कोई एक सिर्फ जहाँ पे ज्यादा ठंड रहती है या फिर बर्फ वाला जो एरिया है वहां पे उसका मिलना लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे उसको सर्वाइव करना पॉसिबल है नहीं है, डिफिकल्ट है। बाकी हर जगह पे आपको सर्वाइव कर लेगा अगर रिलीज करते हैं। और उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा और जो रिलीजिंग का जो हम आइडियाज जो लेते हैं, तो जो रिजल्ट है हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था रेस्क्यू और रिलीज के टाइम पे, तो उसका वो मैं आपको आपके साथ आगे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ है डेंस वेजिटेशन और एग्रीकल्चर लैंड। सेंट्रल रीजन जो हमारा है विरमगाम और सानंद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है, तो यहाँ पे वैसा कुछ लाइक रिजर्व फॉरेस्ट या फिर थॉल बर्ड सेंचुरी और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी को छोड़ के वैसा कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि जहाँ पे हम लोग सोचे कि भाई हाँ, ये ऐसा एरिया होगा तो वहाँ पे पाइथन मिल रहे होंगे। नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर लैंड में सर्वाइव कर रही है। और मैं जो प्रोग्राम की शुरुआत में जो मैंने बोला कि कम्युनिटी का क्या रोल है इसमें कंजर्वेशन में,
तो उसके हिसाब से अगर हम बोले तो 90% जो पॉपुलेशन है पाइथन का वो एग्रीकल्चर लैंड में सर्वाइव कर रहा है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड में वो लोग रह रहे हैं। उसमें से भी अगर जो अभी करंट जो डेटा है मेरे पास, जो पूरा एरिया जो है वहाँ का, तो उसमें से 20 से लेके 27% तक जो पाइथन्स है और पूरी पॉपुलेशन में से वो वहाँ पर ऑलमोस्ट जो रह रहे हैं वो नियर ह्यूमन हैबिटेशन रह रहे हैं। और लास्ट 2 साल से मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो चीज़ वैसा है कि लाइक कोएग्जिस्टेंस हमने नाम क्यों रखा है, तो उसका ये एक मेन रीजन है कि लास्ट 2 या 3 साल से एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं कि काफी स्पेसिमेन ऐसे हैं कि जो लोगों के घरों के आसपास रह रहे हैं। यानी कि कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि लोगों के कॉल आते हैं कि भाई मेरे घर में यहाँ पे 3 दिन से पाइथन दिख रहा है, वो आता है आके चला जाता है। पर अवेयरनेस और एजुकेशन अभी इतना है कि लोगों ने एक लाइक जैसे हम डोमेस्टिक एनिमल जो है डॉग है कैट है उसको जब जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ वो हमारे सोसाइटी में या फिर घर के आसपास रह रहा है, तो पाइथन को वैसे ही लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ है। तो लाइक कॉन्फ्लिक्ट का कुछ इश्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। तो लोगों को पता है कि अगर इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तभी अटैक करेंगे तभी हमको ये एग्रेशन में दिखेगा। अगर उसको उसके हाल पे हम छोड़ देते या सेफ डिस्टेंस से उसके ऊपर हम नजर रख के या फिर उसको जाने देते तो ज्यादा कुछ उसमें इश्यू क्रिएट नहीं होते। तो ये रहा एग्रीकल्चर लैंड का जो है हमारा जो हैबिटेट उसके ऊपर मैं मेनली फोकस करूंगा। ये एक छोटा सा ग्रास लैंड है हमारे पास, तकरीबन ये कुछ 90 या 95 हेक्टेयर का ग्रास लैंड है। और वहां पे अभी 4 स्पेसिमेन ऐसे हैं जो परमानेंटली स्टे कर रहे हैं पानी या नियर वाटर बॉडीज। अगर पाइथन के लिए अगर कोई अच्छी सी जगह हो कि आपको अगर कहीं पे पाइथन को सर्च करना हो या स्पॉट करना हो या ढूंढना हो, तो एक सबसे पहला जो प्रायोरिटी हमारा है वो यही है कि ऐसा एरिया सिलेक्ट करो कि जहाँ पे पानी कंटिन्यू 365 डे अवेलेबल रहता हो। लाइक ऐसा वाटर बॉडी कि जहाँ पे पूरे साल या हर साल भर वहाँ पे जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहां पे पाइथन का मिलना बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो ये एक चीज है कि वो जनरली नियर वाटर बॉडी रहना पसंद करते हैं, बरोज या फिर डेल्स के अंदर वो अपना घर बनाते हैं। ये भी चीज आई थिंक सबको पता होगा। पर हाँ एक बिहेवियर जो है उसका तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एडोप्टेशन के मामले में अगर हम देखें तो सिर्फ पाइथन नहीं, जितने भी सांपों का जो जितने भी स्पीशीज है उनके लिए जो उसके आसपास का जो एटमोसफियर है या फिर जो हैबिटेट है उसके हिसाब से वो लोग इतना जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और यही एक रीजन आई थिंक कि वो इतने सालों से यहाँ पे हमारे साथ सर्वाइव कर रही है या फिर यहाँ पे रह रहे या जी रहे। तो एडोप्टेशन का जो स्किल है पाइथन का वो काबिल दाद है। और उसके लिए मैंने एक वर्ड उनको दिया हुआ है पाइथन को, सर्वाइविंग एक्सपर्ट। तो कैसा भी एटमोसफियर होगा वो अपने हिसाब से वहां पे ढल जाएगा। क्योंकि काफी काफी लोगों को पता नहीं होगा कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं या फिर जो हमारा वर्किंग एरिया है वहाँ पे समर में टेम्परेचर, दोस्तों आई थिंक लास्ट 2 साल या 3 साल का जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट 49 डिग्री तक पहुंचा है समर का टेम्परेचर। और विंटर में जो रहता है तो वो 10 के नीचे चला जाता है। तो जो वेदर कंडीशन है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर है कि समर में जो कंडीशन रहती है एकदम हार्श एनवायरमेंट रहता है, तब भी ये बंदे वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। विंटर में भी ये लोग वैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। और अब तक जो आइडेंटिफाई की हुई जो हाइब्रिड ब्रूमेशन की जो साइट्स है, क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर में, एक ये जगह ऐसी है कि जो पाइथन के लिए फेमस है राजस्थान में। वहां पे ब्रूमेशन की काफी साइट्स पाइथन की मिली हुई है। और उसके साथ साथ एक दूसरी जगह है जो हम जो जहाँ पे काम कर रहे हैं सेंट्रल गुजरात में, ये 2 साइट्स ऐसी है कि जहाँ पे हम ब्रूमेशन में पाइथन की एक्टिविटीज या फिर उनको हम लोग देख सकते हैं। आप शायद स्लाइड में भी आप देख सकते हो जो डैम्स और इसके अंदर जैसे ये स्टे करते या फिर रहते हैं। और हाँ उसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है जो शायद आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, मैं शेयर करना चाहूंगा
ब्रीडिंग के लिए नेस्टिंग का जो साइट है, जनरली 10 में से 8 पाइथन्स ऐसे हैं जो रेस्टिंग के लिए, अपनी रूस्टिंग के लिए साइट अलग रखते हैं और नेस्टिंग के लिए साइट अलग रखते हैं। उसका जो रीजन है वो भी हम लोग आगे जाके शेयर करूंगा मैं कि क्या क्या रीजन उसके हैं। और काफी कम बंदे हो गए ऐसे जिन्होंने पाइथन या फिर फीमेल पाइथन को अंडों के साथ वाइल्ड में देखा हो। आपको पता है जैसे कि ये नॉक्टर्नल एनिमल है, जनरली वो रात को ही एक्टिव रहता है ये, क्योंकि उसका जो हंटिंग का जो टाइम रहता है वो मेनली रात को ही एक्टिव होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये दिन में नहीं दिखेगा। दिन के टाइम में ज्यादातर वक्त ये पानी के आसपास आपको मिल जाएगा देखने को, या फिर उसका जो रोस्टिंग साइट है उसके आजू बाजू में या फिर आसपास में आपको अर्ली मॉर्निंग बास्किंग के टाइम धूप सेकते हुए पाइथन आपको दिख जाएंगे। उसके लिए सिर्फ मेन चीज एक ही है कि जब भी हम उसके हैबिटाट के अंदर जा रहे हैं तो हमें सिर्फ नजर है अपनी और कान, ये दोनों चीजें खुली रखनी है। और एकदम बारीकाई से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तब भी पाइथन का साइट साइट होना या दिखना पॉसिबल है। अदरवाइज जैसे हम घूमते या फिर टहल के आ जाते हैं तब वो आप उसके ऊपर पैर रख के भी निकल जाओगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पाइथन हाइड हुआ है या फिर ये अम्बुश में ये हाइड है। उसका जो बिहेवियर जो है, बॉडी लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एग्रेशन में है, ये अभी अपने एनवायरनमेंट में क्या फील कर रहा है, उसके लिए जो पूरा उसका बॉडी लैंग्वेज का जो पार्ट है वो मैं आपको हैंडलिंग का जो मेरे पास प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैंने रखा हुआ अलग से। बिहेवियर जनरली नॉन ऑफेंसिव है, क्योंकि जब तक आप पाइथन को डिस्टर्ब नहीं करोगे या जब तक उसको आप छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। या फिर सेल्फ डिफेंस जनरली वो जो रहता है उसका मेनली वो सेल्फ डिफेंस में ही आएगा। पर एक बार अगर जो डिस्टेंस जो है, लाइक हमारा और एनिमल का जो डिस्टेंस है वो जैसे ही कम रहेगा तब भी वो अटैक करेगा। और जनरली पाइथन का देखा गया है कि काफी टाइम हम लोगों ने भी ये फेस किया हुआ है कि जब वेल के जो रेस्क्यू रहते हैं कुएं के, तो उस टाइम ये चीज हमने ऑब्जर्व की हुई है कि जनरली वो अटैक नहीं करता है। पर जब तक पॉसिबल है तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर एनकाउंटर अवॉइड ही करता है और अपने हिसाब से जो सेफ प्लेस है या फिर सेफ पोजीशन में आ जाता है। और सबको पता है जब भी एश शेप में, कैपिटल एश जो है अपना, उस शेप में अगर वो आता है तो फिर उसका जो बॉडी है उससे वो 1/3% तक वो अपने आपके पास जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करके टारगेट कर सकता है। और बाइट भी करेगा तो पाइथन का बाइट लाइक सोचने में ऐसी बात है कि अगर हैवी बाइट है तो उसके लिए रेस्क्यूअर को या फिर कोई भी नॉर्मल पीपल है या फिर जो दूसरे जो लोग हैं तो उसके लिए उसको काफी पेनफुल रहता है। और वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसका काफी बार। पर चलता रहता है, काम है तो फिर उसको पता नहीं रहता है। डाइट खाने में क्या क्या रहता है, पाइथन का जो कजिन सिस्टर है बर्मीज पाइथन, अभी रिसेंटली आई थिंक 2007 या 8 में उसको एक अलग स्टेटस दिया गया है। तब तक हम यही समझ रहे थे कि ये सब स्पीशीज है बर्मीज पाइथन जो है। अ, जो कैनाबिलिज्म जो है बर्मीज पाइथन में दिखा हुआ है, मॉलुरस में अब तक लिटरेचर में या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट में भी वैसा कोई केस अब तक सुनने में नहीं आया, सिवाय एक केस हम लोगों ने साउथ गुजरात में राजपीपला में एक केस हमने नोट किया हुआ है। मेरे सीनियर और अच्छे दोस्त जो आरिफ थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की हुई है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसमें ये चीज है। और ये काफी शॉकिंग था क्योंकि जितना पाइथन का जो बिहेवियर है उसको मैं जानता हूँ तब तक लाइक ये चीज एक ऐसा था कि तब तक बिलीव नहीं हो रहा था। पर हाँ, जब वो पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन वो देखा तो ये चीज पक्का है कि हाँ, कैनबलिज्म भी पाइथन मोलरस के अंदर देखने को मिला है। और शायद ये एक ही रिकॉर्ड है अब तक का। जनरली उसके फूड के अंदर वैसा है कि जो मैमल्स रोडेंट्स जो है वो रहते यहाँ पे जो हमारा जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे जनरली अब तक 6 से 7 ऐसे केस है जिसके अंदर पाइथन ने ब्लू बुल के बेबीज के ऊपर अटैक किया हो और उसको खाया हो। और उसके लिए जो पेशेंस है, ये एनिमल एक ऐसा है कि अगर पेशेंस के मामले में अगर हम सोचे तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि खाने के लिए
एक जगह पे पोजीशन लेके ये बैठता है या फिर जब भी ये अटैक करता है, तो ये जो टाइम रहता है तो एकदम पेशेंसली वो प्रॉपर कैलकुलेट करके उसके बाद ही वो अपने प्रे पे अटैक करता है और उसको पकड़ता है। और आप लोग शायद इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, और सौराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि लाइक गीर का जो पार्ट है वहाँ पे भी टाइगर का पॉपुलेशन बहुत अच्छा है। तो वो जो एक एरिया है, तो मैं पर्सनली ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और थोड़ा बहुत मेरे पास उसके रिलेटेड डेटा भी मैंने कलेक्ट किया हुआ है कि जो टॉप प्रेडिटर जो है, एपेक्स प्रेडिटर का अगर हम लिस्ट निकालें कि भाई नंबर ऑफ कौन से एनिमल है जो फूड चेन हम बनाते हैं, तो उसमें जो प्रेडिटर्स जो है, प्रे एंड प्रेडिटर्स का, तो उसके अंदर जो हंटिंग का जो रेशियो है, कौन सा एनिमल ऐसा है कि जिसका हंटिंग का रेशियो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उसमें मैं क्योंकि मैं खुद वहां से बिलोंग करता हूँ, गिर का जो पार्ट है, तो अभी नहीं तो अगले कुछ टाइम में या फिर कुछ सालों के बाद एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जब ये चीज आप लिख के भी रख सकते हो कि पाइथन जो है, वो जो गिर में जो दो बिग कैट हमारे पास है, लायन है और लेपर्ड, उसके साथ ये एनिमल सेम प्लेस शेयर करता होगा, क्योंकि 10 में से तकरीबन 8 अटैक में पाइथन सक्सेसफुली हंट करता है। इतना सक्सेस रेशियो तो आई थिंक लेपर्ड और लायन का भी नहीं है। तो ये उसका स्किल है हंटिंग का, और उसके लिए भी ये चीज एक ऐसी है कि जो उसके पास से हम लोग बहुत कम जानते होंगे कि भाई हाँ ये चीज है, ये कैसे फीड ले करता है, या फिर उसका जो हंटिंग का जो टेक्निक है, हंटिंग का जो एक नॉर्मल टेक्निक है कि लाइक वो अपना जो हैबिटाट है उसके अंदर एक तो इतना परफेक्टली कैमोफ्लेज होता है और हाइड होकर बैठता है, और जैसे ही कोई एनिमल उसकी रेंज में आता है तो सडनली उसके ऊपर अटैक करता है, और उसके बाद पूरा उसका जो बॉडी है वो अपने प्रे पे या जिस एनिमल को उसने कैच किया है उसके ऊपर वो कॉइल करके लगा देगा। और यही चीज मेन उसका रहता है उसके साथ साथ। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो स्टडी रिसर्च हुआ उसके हिसाब से अब तक हम लोग ये समझ रहे थे कि जो कंस्ट्रक्टर है या फिर जो बड़े सांप है वो अपने जो शिकार है या फिर अपना जो प्रे है उसको मार के खाते हैं, नहीं वैसा कुछ नहीं है, और वो प्रेशर इतना देते हैं कि लाइक उसका जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है या फिर कोमा में चला जाता है, और उसके थ्रू आउट उसके बाद वो पूरा का पूरा उसको निगल लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी पाइथन का बहुत ही लाइक बोल सकते हैं कि जो बड़े एनिमल्स या मेमल्स है उसको जब वो खाता है तो उसके जो पैरों के जो खुर है या फिर सींग है उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे स्लाइड में दिख रहा है कि वो जैसे प्रे को पकड़ता है तो पूरा उसका बॉडी उसके ऊपर कॉइल लगा लेता है और उसके बाद उसका दम घोट देता है। एक्टिविटीज की जो बात हुई कि जनरली नॉक्टर्नल एनिमल है, पर दिन के टाइम भी ये दिखता है, और ऐसा भी नहीं, हाँ इसको डे टाइम पे भी हमने हंट करते हुए देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। ये नाइट के टाइम में बैठा हुआ है वो रिप्रोडक्शन सबको लाइक हमारे पास ऑलमोस्ट काफी स्पीशीज ऐसी है कि जिसका हम लोगों ने या फिर साइंटिस्टों ने उसका जो रिप्रोडक्शन का जो ब्रीडिंग बिहेवियर है उसको तो हमने समझा है या फिर हम लोग काम कर रहे हैं, पर ये एक स्पीशीज ऐसी है कि जिसका रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग बिहेवियर पे ज्यादा हमको कुछ मालूम नहीं है। जो भी हमारे पास डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन हम जानते हैं ना, वो सिर्फ बेसिक है। क्योंकि और दूसरा एक चीज है कि हम लोग अगर वाइल्ड एनिमल को या फिर वाइल्ड पाइथन को और कैप्टिव पाइथन को, इन दोनों का बिहेवियर अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये चीज शायद मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कैप्टिव एनवायरनमेंट में के अंदर जो एनिमल रह रहा है उसका बिहेवियर और जो वाइल्ड में उसका बिहेवियर में काफी अंतर दिखेगा आपको। और उसके काफी बहुत फैक्ट्स भी जो है कि उसके अंदर मेनली जो बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस या फिर जो वेरिएशन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। और ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका रीजन यही है कि इसको साइड करने पहले तो बहुत डिफिकल्ट है। जनरली दिसंबर से स्टार्ट होता है, पर जो प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया हुआ है ये मेरे एरिया के हिसाब से हुआ है, तो लाइक जनवरी टू अप्रैल
उसका भी ये रीजन है कि हम लोग क्यों ऑलमोस्ट 20 to 30 डे हम लोग पीछे है इसमें। तो उसका रीजन भी एक है कि वो है मानसून, क्योंकि रेनफॉल का जो टाइम रहता है तो उसके टाइम हमारा जो पूरा एरिया है वो टेम्पररी वेटलैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जनवरी टू अप्रैल के टाइम का जो पीरियड है ना, वो मैटिंग पीरियड के हिसाब से हम लोग काउंट कर रहे हैं उसका। और मैटिंग का जो टाइम रहता है, तो जब फीमेल मैटिंग के लिए अवेलेबल रहती है तो एक टाइप ऑफ फेरेमोन रिलीज करती है वो, और उस फेरेमोन से मेल पाइथन अट्रैक्ट होते हैं, और उसके साथ साथ वो फिर फीमेल के पास पहुंचते हैं, वहां पे उसका मैट होता है। अब ये बिहेवियर या फिर मैटिंग बिहेवियर का जो प्रॉपर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, तो शायद अब तक बहुत कम लोग होंगे, या फिर शायद वैसा नहीं है कि हमारे पास वाइल्ड पाइथन मोलुरस का ब्रीडिंग का कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन फोटोग्राफिकली या वीडियोग्राफिकली अवेलेबल नहीं है अब तक। शायद अगर किसी के पास है तो प्लीज वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉम्बैट जो रहता है, और ये टाइम या फिर पीरियड एक ऐसा है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर रेस्क्यूअर्स जो लोग हैं, तो उनको मैं काफी बार ये चीज बोलता हूँ कि आप लोग जब रेस्क्यू के लिए जा रहे हो तो आपके पीरियड के हिसाब से पाइथन की एक्टिविटी रहती है। तो जैसे ही विंटर में जब ड्यूरेशन का टाइम खत्म होता है पाइथन का, तो वो ब्रूमेशन खत्म होते ही इन लोगों का मैटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। तो मैटिंग पीरियड एक ऐसा है कि लाइक ये लोग साथ में नहीं रहते, इंडिविजुअली होते, पर जब मैटिंग पीरियड आता है तो जो मेल पाइथन्स है उनका माइग्रेशन शुरू होता है मैटिंग के लिए, कि वो मैटिंग करने के लिए जो फेरोमोन है उससे अट्रैक्ट होके वो फीमेल की ओर जाना या फिर ट्रैवल करना स्टार्ट करते। तो आपको दिसंबर से स्टार्ट करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो टाइम है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पाइथन्स आपको रेस्क्यू के कॉल मिलते रहेंगे। ये चीज आप आपके अगर डेटा मेंटेन करते हो तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम जो है, ये पीरियड जो है ना मैटिंग का, तो उसके लिए मेल्स जो है वो अपना माइग्रेशन शुरू करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उस टाइम के अंदर ये लोग जब ट्रैवल करते हैं तो लोगों को भी दिखते हैं, और उसकी वजह से ये कॉल से वो सब आते रहते हैं। और उस टाइम जो उनका जो बिहेवियर रहता है पाइथन का, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लाइक हम बोल नहीं सकते कि ये डिफेंसिव है या फिर एग्रेसिव है। जनरली तो मैटिंग पीरियड के टाइम मेल्स जो है वो एग्रेसिव ही रहते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। और जब डिस्टर्ब होता है एनिमल तो ऑब्वियसली वो एग्रेशन रहेगा ही रहेगा, पर ये टाइम जो है उस टाइम वो ज्यादा एग्रेसिव। और जब हम लोगों ने काफी बार मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है नाइट टाइम पे जब हम लोग फील्ड में रहते हैं ड्यूरिंग मैटिंग पीरियड, तो मेल्स का जो बिहेवियर रहता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस रहता है। तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब करोगे या इंटरफेयर करने का ट्राई करोगे, तो जब तक पॉसिबल है वो अवॉइड ही करता है। लाइक उसको ज्यादा कुछ अपने आसपास के एनवायरमेंट का पता नहीं होता। और ये चीज क्यों हो रही है वो एक क्वेश्चन है, वो आज भी उसका सॉल्यूशन या फिर आंसर नहीं मिला है। पर हाँ, ये चीज ऐसी है कि जो फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग एवरी ईयर। और दूसरा है उनका जो हैचलिंग का जो टाइम रहता है उस टाइम ज्यादा कॉल्स रहते हैं। ये दो टाइम है। और दूसरा है जो क्रॉपिंग का जो टाइम रहता है, क्योंकि ब्रूमेशन के बाद वो जो टाइम है ब्रूमेशन मैटिंग का, उसी टाइम हम लोग के फार्म्स के अंदर जो खेत है उसमें क्रॉपिंग का जो टाइम रहता है, तो उस टाइम चावल है, फिर गेहूं है, ये जो जब कटाई उसकी होती है, तो पाइथन्स क्या करते हैं कि जनरली अपना स्किन जो है उसको शेड करने के लिए उनको ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए या फिर मॉइस्चर चाहिए। तो उसके लिए ये लोग वहाँ पे शेल्टर लेते हैं या फिर वहाँ पे जाके बैठते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे उसको अपना जो फूड है वो भी इजीली वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि रैट्स, रैबिट, हैर जो है वो सब वहाँ पे इजीली उनको मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीज वहाँ पे हो जाती है। तो उस टाइम पे लोगों को ज्यादा कॉल्स रहते हैं। और दूसरा अगर ब्रीडिंग के टाइम का जो एनिमल का जो बिहेवियर जो रहता है उसके साथ साथ उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो कॉम्बैट रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, जो लोकल्स हैं यहाँ पे उनको जब हम लोग मिलते हैं या पूछते हैं, तो आज तक हम लोगों के पास एक या दो केस ही ऐसे हैं कि जिसमें हम लोगों ने मेल्स पाइथन का कॉम्बैट ऑब्जर्व किया हुआ है। पर लोकल्स को जब हम मिलते हैं या फिर उनको जब हम पूछते हैं, तो वो लोग
उनके जो वर्ड्स है मैं वही आपको बोल रहा हूँ। ये लाइक अनबिलीवेबल है कि एक साथ 6-6 8-8 मेल्स कॉम्बैट करते हैं, और वो भी प्रोसेस जो है वो सेम रहता है, लाइक रैट स्नेक का सबने देखा होगा, क्योंकि वो एक बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है जो मेल्स का जो कॉम्बैट रहता है। तो सेम प्रोसेस इसका भी रहता है, पर ये चीज अब तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है वीडियोज या फोटोग्राफी थ्रू है। हम लोग भी अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर मिल जाए, पर ये सब चीज ऐसा है कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना जरूरी है। अप्रैल से जून का जो टाइम है, तो फीमेल जनरली 8 से लेके लिटरेचर में तो ऐसा कहा गया है कि 8 से लेके 100 तक एग्स देती है। पर जो डेटा और ऑब्जर्वेशन जो हमारा है, तो उस हिसाब से मैं ये चीज बोलता हूँ कि जो अंडों का जो काउंट जो है, वो फीमेल की एज और उसकी लेंथ और उसके साथ साथ उसकी हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये चीज हमने नोट किया हुआ है, क्योंकि जनरली जो एवरेज लेंथ जो है सेंट्रल गुजरात का, वो आज निकल रहा है लास्ट 5 साल का जो है, वो है एकदम तकरीबन 9 फीट से लेके 11 फीट तक का एवरेज लेंथ है पाइथन का। और यही चीज हम लोग अगर नॉर्थ गुजरात में चले जाते हैं, तो वहाँ का जो एवरेज लेंथ है, खास करके तारंगा बनासकांठा का जो रीजन है और पोलो फॉरेस्ट का जो पेज है, वहाँ पे जो एवरेज लेंथ है वो तकरीबन है 13 से लेके 15 फीट का, कि एवरेज आपको 13 से 15 फीट का पाइथन वहाँ पे एवरेज लेंथ में मिल जाता है। और वही चीज उसके साथ साथ वेट में भी है कि यहाँ का जो हमारा जो रेशियो है, वो पर फीट अभी का जो है, जो अपडेट वर्जन हम बोलते हैं कि लाइक अभी के जो पाइथन है वो अपडेटेड हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ जो हम लोगों ने स्टार्टअप में जो एक्सपेरिमेंट जो किया था, उसका जो रिजल्ट है बहुत ही पॉजिटिव वे में मिला है हम लोगों को। तो पर फीट हम लोगों को यहाँ पे 2 से 2.5 kg का जो एवरेज है वो मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग काउंट करें, तो अगर मान लो कि तकरीबन 7 फीट का पाइथन है, तो 7 फीट का पाइथन में 2 से 2.5 kg के हिसाब से 7 दुगना 14 और 14 यानी कि 17 से लेकर 18 kg तक का पाइथन मिल सकता है हम लोगों को। 7 से 8 फीट का पाइथन जो रहता है, तो उसका वेट इतना मिलता है। और उसके हिसाब से सबको पता है कि भाई हाँ, ये चीज भी उसके हैबिटेट और उसके फूड के ऊपर डिपेंड है, कि जैसा उसका फूड रहेगा उसके ऊपर पाइथन का बॉडी ग्रोथ रहता है। तो अंडों का जो डिजिट है जनरली, जो एवरेज जो है सेंट्रल का हमारा, वो है तकरीबन 12 से लेकर 28 तक का है। और मैक्सिमम हम लोगों ने एक फीमेल जो है हमारी, वो कुल 36 एग से उसने लास्ट ईयर एग ले किए थे। वो जो क्लच का जो साइज जो था वो 36 अंडों का था, और उसमें से वो पूरा का पूरा फर्टिलाइज था, और 100% रिजल्ट के साथ उससे वो हैच हुआ था नेचुरली। एक्चुअली जून से लेकर अगस्त, जनरली जून जुलाई में बेबीज अंडों में से निकल जाते हैं। पर जो डेटा है उसके ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे पास अगस्त में भी, अगस्त एंडिंग में भी हम लोगों को एकदम लाइक जस्ट बॉर्न जुवेनाइल्स हम लोगों को मिलते हैं, या फिर हमने रेस्क्यू भी किए हुए, या हमने स्पॉट भी किए हुए। तो उस हिसाब से हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ, जो उसका जो प्रॉपर टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 महीना लेट है। उसके जो रीजन है वो भी नेचुरली जो एनवायरनमेंट है और यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेबी जो है, जो अंडों के साइज के हिसाब से 18 से लेके 24 इंच तक का बच्चा होता है। हाँ, मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज। मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज बोलने का रीजन क्या है, सबको पता है। काफी कम बंदे हैं जिन्होंने इसको वाइल्ड में अपने प्रॉपर एनवायरनमेंट में साइट किया है, क्योंकि ये इतना परफेक्टली अपने एनवायरनमेंट में हाइड रहता है या फिर घुल मिल जाता है कि उसको देखना या साइट करना बहुत ही मुश्किल है। ये चीज एक ऐसी है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप ये स्पीशीज है कि जिसको प्रॉपरली जानते हो अच्छे से, तभी आपको पता चलेगा। और उसके लिए 2-3 फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर ये चीज आपको ड्यूरिंग आपके फील्ड वर्क या आपके ट्रायल के टाइम आपको अगर दिखता है, या फिर आपको ये चीज ऑब्जर्व होती है, जो 2-3 पॉइंट्स है, तो आपको वहां पे 95% चांसेस है कि आपको पाइथन मिल जाएगा। आप खुद अपने हिसाब से एक पॉइंट है, जितने भी रेस्क्यूअर्स है या फिर जो फील्ड में घूमने वाले लोग हैं,
हमने शायद काफी स्नेक स्पीशीज की जो शेडिंग स्किन है वो हमने देखी होगी वाइल्ड में रिमूव की हुई, कि जो रिमूव करके जो छोड़ दी होती है वो स्किन या फिर कैचुअली हम लोग देखते। कोई है ऐसा कि कोई है कि जिसको पाइथन का स्किन वाइल्ड में वैसे छोड़ा हुआ मिला हो किसी को भी? शायद ही कोई होगा जिसको ये चीज मिला हो। तो आप सोचिए ये एनिमल ऐसा है कि जो अपना जो एविडेंस है या फिर अपने प्रेजेंस ऑफ एविडेंस जो है अपना, वो वैसे ही ऐसे वैसे लाइक यहाँ वहाँ छोड़ नहीं देता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वो सबको पता चले। ये इतना शाय बिहेवियर है उसका। कैसे वो अपना अपने एनवायरमेंट में हाइड होता है या फिर कैसे वो घुल मिल जाता है, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर तकरीबन 7.5 से 8 फीट का एक मेल पाइथन छुपा हुआ है या हाइड हुआ है। अगर किसी को स्पॉट होता है तो वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं बाद में। ये एक रीजन है उसको मैं क्यों मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज बोलता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो ढूंढने की कि भी कहाँ पे 7.5 से 8 फीट का स्पेसिमेन है इसके अंदर। ये मैंने यहाँ पे दूसरी स्लाइड में दिखाया उसका जो सेंट्रल में जो हेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है उसका, ये वो बेसिक उसका जो शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाने का या फिर बोलने का ट्राई किया है। हमारा जो काम है मेनली हम लोग 3 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अवेयरनेस, क्योंकि मैं खुद ये चीज हम बिलीव करते हैं कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्वेशन। अवेयरनेस के बगैर या फिर विदाउट अवेयरनेस कंजर्वेशन के जो टारगेट्स या फिर गोल्स उसको लाइक अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसके साथ साथ हैबिटेट, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है कि ये पूरे की पूरी वाइल्ड एनिमल जो जितना भी हमारे पास जो भी पूरा वाइल्ड लाइफ है, सिर्फ पाइथन नहीं जितने भी वाइल्ड एनिमल है वो सब अभी हैबिटेट लॉस का जो इश्यू है उसको फेस कर रहे हैं। और उसके लिए जो रीजंस जो रिस्पॉन्सिबल है वो आप सबको पता ही है, आप सब जानते हैं। और उसके साथ साथ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू भी एक ऐसा पॉइंट है या फिर एक ऐसा जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। कंजर्वेशन के लिए रेस्क्यू भी जरूरी है, और सिर्फ रेस्क्यू नहीं, रेस्क्यू के साथ साथ रिहेबिलिटेशन। और रेस्क्यू के साथ मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोगों को हम लोग मैं समझाता भी उन लोगों को रिक्वेस्ट भी काफी टाइम हम लोग करते रहते कि आप जब तक हो सके अवॉइड करिए रेस्क्यू को। अननेसेसरी सिचुएशन है तभी उसको रेस्क्यू करना है। अगर लाइक वैसा है कि हाँ इसको रेस्क्यू करना नेसेसरी हो गया है तो फिर ठीक है कि उसको हम रेस्क्यू करें या फिर इंटरफेयर करें। जब तक उसको अपना स्पेस मिलेगा तब तक वो एनिमल अपने हिसाब से वहां से चला ही जाएगा। अवेयरनेस ऑन द फील्ड, आपको ये जो छोटे बोर्ड जो दिख रहे हैं इसका रीजन ये है कि जो लोकल विलेज एरियाज जो हमारा है तो वहां पे क्या रहता है कि मानसून के टाइम पे मेजोरिटी 85% से ज्यादा जो खेत है उसमें चावल की खेती रहती है, चावल उगाते हैं लोग। तो चावल में क्या रहता है कि पानी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा जब तक वो पक के क्रॉप तैयार नहीं हो जाता तब तक उसमें पानी भरना पड़ता है, वो एकदम भरा ही रहता है पानी। तो पाइथन के लिए क्या रहता है कि उसको पानी मिल जाता है तो माइग्रेशन के लिए एकदम परफेक्ट वो सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि स्विमिंग में ये बंदा एक्सपर्ट है और उसको चलने में जितना उसका एनर्जी वेस्ट होता है उससे कहीं कम स्विमिंग में रहता है। तो स्विमिंग में ज्यादा उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। और खेतों में जो पानी रहता है तो उसके हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह पूरे एक खेत से दूसरे खेत में वो ट्रैवल करता रहता है, माइग्रेट करता रहता है। तो उस टाइम जब रोड क्रॉसिंग में एनिमल आता है तो रोड एक्सीडेंट के केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, और उसमें काफी डेथ के रेशियोज भी थे। अभी 2 साल से ऑलमोस्ट वो भी हमने काफी रिड्यूस कर लिया, और हम बोल सकते हैं कि अंडर कंट्रोल है वो सिचुएशन। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग मानसून के टाइम में एक महीने में 9 से लेके 12 पाइथन तक हम लोगों को रोड किल में मिलते थे। और उसके लिए हम लोगों ने साइन बोर्ड लगवाए थे, स्पीड ब्रेकर जो थे। और ये जो काम था ये काफी रिजल्ट उसका अच्छा मिला है हम लोगों को। जो लोगों को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि लाइक आप व्हीकल
स्लो चलाइए। तो ये क्योंकि रोड जब ये क्रॉस करता रहता है तो एक तो इसका जो मूवमेंट जो है, लोकोमोशन है, वो बहुत ही स्लो रहता है। जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तब तक ये एकदम आराम से चलता है। टू प्रिवेंट रोड किल्स, उसके लिए जो आपने जो अगली स्लाइड में जो देखे, जो रोड किल्स के जो बैनर्स हम लोगों ने जो लगाए थे अपने हिसाब से, अवेयरनेस थ्रू आउट लेक्चर्स। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर पर्सनली मुझे कोई वैसा, अगर मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने का कि तुम्हारे पास दो जनरेशन है जिसको तुम्हें पाइथन के बारे में बताना है या फिर उनको अवेयर करना है या समझाना है। एक जनरेशन ऐसी ऐसा है कि जो मैच्योर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कॉलेज लेवल के ग्रुप जो है, एक जनरेशन ये है। और दूसरा जनरेशन ऐसा है कि जो स्कूल से बिलोंग करते हैं या फिर प्राइमरी, जो छोटे बच्चे। तो ऑब्वियसली मैं पर्सनली ये चीज बिलीव करता हूँ कि आप जितना यंग जनरेशन जो हमारा है, लाइक जो छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर आप कंजर्वेशन के जो हमारे जो थॉट्स है, वो अगर जितने हम उनके दिमाग में बिठा सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, तो ये जो चीज है ये कैसा रहेगा कि हम लोग फ्यूचर जो है एनिमल का या वाइल्ड लाइफ का वो सिक्योर कर रहे हैं। क्योंकि यंग जनरेशन को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता रहता है, और उनसे कहीं ज्यादा जो टाइम पीरियड है या फिर काम करने का या कंजर्वेशन का, वो ये जो बच्चे हैं छोटे, उनके पास कहीं ज्यादा, अगर वो छोटी एज में ही इसके बारे में अवेयर रहते हैं या फिर उनको पता रहता है या फिर वो समझने लगते हैं कि भाई हाँ, ये चीज ऐसी है कि जिसको हमें बचाना पड़ेगा या फिर ये हमारी विरासत है, तो ये जो है उसका रिजल्ट हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए हम जनरली ये टारगेट करते हैं कि जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और फिर नाइट में लोकल विलेजेस के अंदर जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो लोग हैं उनसे, और उनके जो रिव्यूज है पाइथन के बारे में वो क्या रहते हैं वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और कम्युनिटी का कंजर्वेशन में क्या रोल है, मैं वो आगे आपको एकदम लाइक पॉइंट टू पॉइंट जितना हो सकता है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर एज ए एक रिसर्चर, कम्युनिटी के साथ एक रिसर्चर का क्या रिलेशन होना चाहिए, या फिर रिलेशन जो कम्युनिटी का और रिसर्चर का को रिलेशन जो है, जो बंदा फील्ड में जाके अपना स्पीशीज या अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, वो कम्युनिटी के साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे जो एक्सपीरियंस है वो टॉक ऑन पाइथन एंड देयर इकोलॉजीज, ये हम लोग उनको समझाते हैं या फिर उसका जो महत्व है वो हम समझाते हैं। ये एक ऐसा चीज है कि लाइक आर्टिफिशियल हैबिटेट मैनेजमेंट, तो उसके लिए हम लोगों ने तीन काम किए मेन। एक तो कम्युनिटी को हम लोगों ने रेडी किया है, जो फार्मर्स है वहां पे, उन लोगों को, कि उन लोगों को पता रहता है कि पाइथन कहाँ पे स्टे कर रहा है या फिर कहाँ पे रहते हैं ये लोग, तो वो लोग उसके अंदर हेल्पफुल रहते हैं। और उसके साथ साथ जो मेन जो चीज एक हम लोगों ने देखी है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 97% या 95% से लेकर 97% तक जो एनिमल है वो पाइपलाइंस के अंदर अपना रूस्टिंग या फिर जो एग लेइंग का जो जगह है वो चूज की हुई है। यानी तकरीबन मोस्ट नंबर ऑफ पाइथन जो है वो पाइपलाइंस के अंदर रहते हैं। और उसके रीजन के लिए बहुत ही काफी लंबा टॉपिक हो जाता है क्यों वो पाइपलाइंस के अंदर रह रहा है। पर एक चीज उसके लिए मैं बोल देता हूँ कि जो टेम्परेचर जो है मेनली वो उसको वहां पे रेडी टू यूज मिलता है। और ये मेन रीजन है उसके लिए कि वो क्यों यूज कर रहा है ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आसपास के गांव में जो खाली पाइपलाइंस रहती है या फिर जो पाइपलाइंस वैसा है कि जो यूज में नहीं है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। और जहाँ पे पानी या वाटर बॉडीज है वहां पे हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया हुआ है, फिट किया हुआ है। पूरा जो नेचुरली जहाँ पे वो आके रहते हैं उसी हिसाब से उसकी कंपेरिजन करके स्टडी करके, तो अब तक का जो हमारा रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 76 से 78% तक हम लोग का सक्सेस रेशियो है उसके अंदर, कि जितनी भी हमने पाइपलाइंस डाली हुई है आर्टिफिशियल, तो वो सभी ने अभी नेचुरली पाइथन में आके उसको एक्सेप्ट किया है, वहाँ पे अभी वो लोग स्टे कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही वाइल्ड पाइथन कंजर्वेशन के अंदर ये पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। और ये उसका एग्जांपल है कि कैसे ये एनिमल आके और ये उसमें अंदर स्टे करते आके। ये फीमेल है और ये उसका रोस्टिंग का साइट है।
आप देख सकते हो पाइपलाइन के अंदर ये कैसे बैठते हैं या फिर अंदर रेस्ट करते रहते हैं। ये अब तक का जो हमारा जो मेहनत जो है उसका ये रिजल्ट है, क्योंकि ये डेल जो पूरा पाइपलाइन है वो आर्टिफिशियली फीड किया हुआ था, हम लोगों ने लगाया हुआ था अंडरग्राउंड। और उसके अंदर फीमेल ने उसको नेचुरली वहां पे वो आई, उसने उसको एक्सेप्ट किया या फिर तकरीबन 3 महीने तक वहां पे उसने स्टे किया था। और उसके बाद वहां पे वो एग लेइंग के लिए भी उसी जगह को उसने सिलेक्ट किया। और ये जो रिजल्ट है वो लाइक हम लोग जो चाहते थे या फिर जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था वही ये चीज है कि आर्टिफिशियली जो उसको हमने घर दिया उसको उसने एक्सेप्ट भी किया, उसके अंदर रहना भी किया और साथ साथ उसमें उसने एक ले भी किया। और ये तकरीबन लास्ट 3 साल से कंटिन्यू हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर बोले कि सपोर्ट अगर किसी का है तो वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उसका मेन और पॉजिटिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव सपोर्ट से भी वो ऑलवेज हमें इंक्रेज करते रहते कि भाई हाँ ये चीज अगर है कि भाई कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर है कि उनको अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा है तो हमें ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए, तो ऑलवेज हमें इंकरेज करते रहते हैं। और उसके लिए ये जो रिजल्ट है हमारा उसका जो क्रेडिट है उसमें वो भी उतनी हकदार है। रेस्क्यू तो जनरल हम लोगों के कॉल्स रहते हैं उसके अंदर 75% कॉल जो लाइक माइग्रेशन के टाइम पाइथन गलती से पूरे गिर जाता है और उसी टाइम वो वहाँ पे फिर बाहर निकल नहीं पाता है तो उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। वर्ल्ड रेस्क्यू जो मैंने अभी आपको बताया कि कुएं के अंदर गिरता है तो उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। ड्यूरिंग रेस्क्यू हमारी जो टीम जो पूरी है तो टीम को हर एक मेंबर को ये पता है कि उनका जो काम रहता है वो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कि जो जो लोग हैं तो एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर मुझे इतना पता है कि मेरी जो टीम है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी टीम में जितने मेंबर है उस हर एक मेंबर का प्लस पॉइंट क्या है। और बस हम लोग वही जो हर एक बंदे का जो प्लस पॉइंट है उसको हम लोग यूज करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि जो लोग हैं कि जो क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट है या फिर क्लाइंबिंग बहुत अच्छा सा कर लेते तो वो लोग कुएं में जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और उसमें जनरली जो काम रहता है हम लोग का वो डिवाइड पूरा का पूरा डिवाइड है कि लाइक डेटा में कलेक्शन जो का जो काम है, डेटा एनालिसिस का जो काम है, रेस्क्यू मैनेजमेंट का जो काम है, अवेयरनेस का जो काम है और उसके साथ साथ जो सर्वेज हम लोग करते हैं तो उसके अंदर भी पूरा काम हमारा डिवाइड रहता है। और ये पूरा एक ग्रुप जो है वो सभी पॉइंट्स या टॉपिक को कलेक्ट करके हम लोग ये पूरा का पूरा कोएग्जिस्टेंस विद पाइथन को ट्राई कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो न्यू वॉलियंटर्स जो आते हैं उसको भी हम लोग ड्यूरिंग फील्ड या फिर फील्ड वर्क में साथ में रखते हैं तो वो भी उसके साथ साथ ट्रेन होते हैं और उनको भी ये सीखने को मिल जाता है। उसके अंदर रिसर्चर्स है या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और सीखते हैं। और उसका उनका जो नॉलेज है वो हम लोगों को भी यूजफुल रहता है, हेल्पफुल रहता है, हम भी सीखने में रहते हैं। ट्रीटमेंट जनरली हमारा जो अहमदाबाद का जो वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर है वहाँ पे पूरा का पूरा हमारे पास ए टू जेड पूरा का पूरा सभी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर ऐसे केसेस आते हैं कि लाइक रोड एक्सीडेंट के अंदर हमें कोई पाइथन मिला है या फिर कोई नेचुरली अगर कुछ उसको हुआ है और वो इंजर्ड हुआ है या फिर बीमार है तो उसको हम सीधा डायरेक्टली वहाँ से हम लोग उसको हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर है उसको वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जब पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई हाँ अब ये वाइल्ड में रिलीज करने के लिए रेडी है तब उसको हम रिलीज करते हैं। और उसके लिए हम लोगों का जनरली ये चीज़ है कि मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जब भी आप इसको रिलीज करते हो पाइथन को तो आप इंश्योर ये चीज़ एक श्योर करिए कि उसको जितना हो सके उतना पानी के आसपास ही रिलीज करिए ताकि उसको वहाँ पे सेटल होने में ज़्यादा टाइम ना रहे। डेटा कलेक्शन ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि साइंटिफिक काम अगर हम लोग करते हैं तो उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ इस स्पीशीज का फ्यूचर कंजर्वेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। थ्रेड्स सबको पता है कि क्या क्या थ्रेड्स है। अभी इसमें हम लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि जो सेंट्रल के जो हमारे पास जो ये दो एरियाज है वहाँ पे रसल्स वाइपर का प्रेजेंस नहीं है। यानी कि पाइथन एक ही ऐसा एनिमल है कि जो
है, तो यहाँ पे मिस आइडेंटिफिकेशन के बहुत ज्यादा कुछ वैसा कुछ रहता नहीं है। और दूसरा जो लोगों का जो डर था पाइथन के बारे में, वो सिर्फ लाइक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये लोगों को जिंदा निकल जाता है, या फिर पाइथन का अगर किसी को वो जो फूंक लगाता है तो उससे ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरा सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये सब पॉइंट्स थे जो लोग समझ रहे थे। फिर लोगों को जब समझा तो जो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो एकदम रिड्यूस होके अभी जीरो पे आ गया। और अभी सिनेरियो ऐसा है कि जो पूरा एरिया जो है या फिर हैबिटेट जो है, वहाँ पे लोगों फार्मर्स और पाइथन ये दोनों साथ में उसको शेयर करते हैं। यहाँ पे लाइक अभी ह्यूमन पाइथन कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट 0% पर है। और लास्ट 4 साल में लोगों के द्वारा पाइथन को मारा हो वैसा एक भी सिंगल केस अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है लास्ट 4 साल में। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हैबिटेट लॉस उसका जो है ये एक मेन रीजन है पाइथन का, कि उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए और सोचने की जरूरत है। कंजर्वेशन स्टेटस सबको पता है। लुक लाइक जो हम मैंने आपको जो बताया, एक तो उसकी जो सिस्टर स्पीशीज जो है बर्मीज पाइथन, उसके साथ मिस आइडेंटिफाई काफी बार होता रहता है। और यूपी का जो पार्ट है वहां पर ये ओवरलैप हो रहा है, लाइक वहां पे दोनों का प्रेजेंस है। मोलरेस भी वहां पे मिल रहा है और बर्मीज भी वहां पे मिल रहा है, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन में काफी दिक्कत रहती है। बाकी ये रसल्स वाइपर और पाइथन का जो है, इसमें काफी बार हम लोगों ने देखा भी है कि लोग रसल्स वाइपर को पाइथन समझ के पकड़ लेते हो, फिर बाद में बाइट होता है और वो सब एक्सीडेंट पूरा है बनता होता है। काफी बार ये चीज देखने को मिलती है। कॉमन सेंस गोवा को लोग पाइथन का छोटा पाइथन या पाइथन का बच्चा समझ के काफी बार वैसा हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, पाइथन का जो चलने का जो तरीका है, ये चीज मैं आपको अगला जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मैं जल्दी से जा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम अभी है नहीं बहुत, तकरीबन 7 से 10 मिनट अभी बचा है। तो या फिर आई थिंक मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है, तो मैं ये एक चीज ले सकता हूँ। तो फिर हैंडलिंग का जो पार्ट है हमारा, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं अभी। तो आपके जो भी क्वेश्चन या कुछ भी हो, तो आप उसको कमेंट्स के जरिए बोल सकते हो। तो मैं आपको मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको वो आपका सॉल्यूशन या फिर आपको आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा। अब आप कमेंट्स के जरिए आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में खत्म कर रहा हूँ। और पाइथन को रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक चीज हम कर सकते हैं कि जितना हो सके आप पहले वहां पे जाओ, उस सिचुएशन को देखो और समझो कि वाकई में क्या इसको जरूरत है रेस्क्यू करने की। क्योंकि एक चीज मैं आपको बोल दूं, जितने भी रेस्क्यूअर्स यहाँ पर मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अगर आपको खेत में से पाइथन का कॉल मिल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि जो फार्मर है उसको आप समझाओ कि भाई ये हर रोज आपको दिखेगा नहीं। और उसके लिए मैं आपको पक्का इंश्योर कर देता हूँ कि एक बार अगर उसको वहां से निकल गया वो, तो बहुत कम चांसेस है कि वो वहां पर दूसरी बार वो एनिमल दिखेगा उस बंदे को, या फिर फार्मर को दूसरी बार दिखेगा। तो जितना हो सके उतना रेस्क्यू को अवॉइड करो। दूसरा, लोग जो गलती जो करते हैं उसमें एक है हैंडलिंग पाइथन का। तो उनको ऐसा लगता है कि लाइक ये बाइट करता है बहुत जोर से काटता है, नहीं। जनरली पाइथन का बाइट रहता है वो स्क्रैच ही आता है उसका। वो पकड़ बाइट करके पकड़ता नहीं है, वो पकड़े नहीं रखेगा, वो सिर्फ स्क्रैच ही देगा। पर टीथ उसके इतने शार्प होते हैं, आई थिंक मोर देन 125 से ज्यादा होता है, क्योंकि 4 रो के अंदर जॉ के अंदर जो टीथ रहते हैं बहुत शार्प रहता है। तो उसकी वजह से जब भी वो स्किन को एकदम लाइक ब्लेड लगती है ना, वैसा उसका पूरा रहता है। तो आप एक चीज कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपके पास जो स्नेक बैगर है उसको पास में रखिए। और अभी जो हमारा जो इंडियन स्नेक का जो गाइडलाइन जो है उसके अंदर अभी वीडियोस भी अवेलेबल है उसके, कि भाई कैसे सांप को हमें उसको बिना छुए उसको हम लोग बैग में डाल सकते हैं या फिर उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये चीज एक ऐसी है कि जो फॉलो करने की जरूरत है। और ये अगर वीडियोस भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो इंडियन स्नेक का जो वेबसाइट है उसके अंदर भी अवेलेबल है।
या फिर मैं ऋषि को या फिर जोश भाई को मैं बोलता हूँ, तो वो भी आपको ये उनके वॉल से भी ये शेयर कर सकते हैं, तो आपको ये चीज वहां से वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी कि सांप को कैसे हैंडल करना है या बैगर करना है। दूसरा, और जब भी जो बॉडी लैंग्वेज जो है पाइथन का, उसको अगर हम लोगों को आगे ले जाना है, क्योंकि यार उसको समझना है, तो उसके लिए मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा एक स्लाइड जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए मैं जो मेरा दूसरा जो प्रेजेंटेशन था, आई थिंक हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, वो खत्म हो गया। फिर भी मैं आपको जल्दी से वो एक जो चीज है कि लाइक जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके हिसाब से हम लोग उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वो एग्रेसिव है या फिर एनिमल क्या फील कर रहा है, वो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। की बिहेवियर एनालिसिस ड्यूरिंग रेस्क्यू। आपको यहाँ पर 3 फोटोज दिख रहे होंगे। उसमें सबसे पहला पिक्चर जो है उसमें उसको आपको छोटा सा एस शेप में वो जा रहा है। ये एक जो एनिमल है, ये सेम ही एक फोटो जो है, वो तीनों के तीनों पिक्चर एक ही पाइथन के हैं। और उसका जो बिहेवियर आपको कैसे एनालिसिस करना है, तो ये पहला जो फोटो है उसमें क्या है कि उसको पता चला है कि मेरा जो प्रेजेंस है, यानी कि मैं जब मैंने उसको सबसे पहली बार साइट किया जब वहां पर, तो उस टाइम का ये फोटो है। क्योंकि रोड क्रॉसिंग के अंदर जो हम लोग को जो पाइथन्स मिलते हैं, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करके रोड से काफी दूर उसको हम लोग रिलीज करते हैं, ताकि दूसरी बार वो रोड पे ना आए और रोड किल से बचा जा सके उसको। तो उसको ये पता चला है, जो पहला जो फोटोग्राफ है, ये शो कर रहा है पाइथन का जो बॉडी लैंग्वेज समझने का जो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले उसको ये अभी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, यानी कि वो डिफेंस में आने का टाइम है, या फिर वो बहुत जल्दी अपना डिफेंस जो है उसमें आ जाएगा। तो ये एक चीज ऐसा है कि उसने मुझे देखा है और उसको पता चला है कि कोई है यहाँ पर मेरे अलावा भी। तो उसकी वजह से उसने जो चलने का जो उसका जो तरीका है, वो जनरली एकदम थोड़ी स्पीड जो बढ़ाई है। इसमें एग्रेशन नहीं है, ये एकदम डिफेंस टेक्निक है। सेल्फ डिफेंस में ही वो थोड़ा जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चले जाइए हम लास्ट पिक्चर में। लास्ट पिक्चर जो है एकदम ट्रेन जैसे चलता है, एकदम स्ट्रेट। ये नेचुरली पाइथन वाइल्ड में जब भी कहीं पर भी होता है, विथआउट एनी डिस्टर्बेंस जब वो चलता है, तो एकदम स्ट्रेट ही चलेगा। जैसे ट्रेन को आपने चलता हुआ देखा होगा, ये बॉडी स्ट्रक्चर जो पाइथन का वैसा एकदम स्ट्रेट ही चलेगा। और जब भी आपको कहीं पे ट्रैक मिलते हैं पाइथन के, तो जनरली वो स्ट्रेट ही मिलेंगे। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसके लिए ट्रैक के बीच में अगर आप एकदम बारीकाई से देखेंगे, तो आपको एक छोटा सा लाइन दिखेगा। वो लाइन क्या है, पाइथन का जो टेल का जो टिप है, उसका लाइन वो बना हुआ है। उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ट्रैक है, ये पाइथन का ट्रैक है, ये पाइथन यहाँ से गुजरा हुआ है। और ये जो दूसरा जो है बीच वाला जो फोटो है, ये है रिलीज टाइम का। यानी कि रिलीज टाइम जब उसको छोड़ते हैं तो वो फुल्ली डिप्रेस या फिर डिस्टर्ब होता है। तो वो तब एक ही चीज सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी दूर भाग जाना है। तो ये चीज आप कर सकते हो अगर आपके आसपास पाइथन है, और बॉडी लैंग्वेज में आपको ये 3 में से जो साइन दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको प्रॉपर प्रिपेयर होकर काम करना है। ये हुआ उसका बॉडी लैंग्वेज। अब हो गया हैंडलिंग का, जो हेड ग्रिप का जो है, ये एक चीज ऐसा है कि जो रेस्क्यूअर के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आप उसको हेड ग्रिप कैसे करते हो। जब भी आप उसका हेड ग्रिप लेते हो पाइथन का, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब तक सिचुएशन ना हो या फिर जरूरत नहीं है, तब तक उसको हैंडल करने की या फिर हेड ग्रिप लेने की जरूरत है ही नहीं। ये चीज जब तक हो सके तब तक अवॉइड करिए। अगर वैसा सिचुएशन नहीं, या फिर एनिमल कुएं में गिरा है, रेस्क्यूअर कुएं में जा रहा है, तो उस टाइम आपको ग्रिप के अंदर क्या ध्यान रखना है। दूसरे स्नेक्स को जैसे पकड़ते हो हेड ग्रिप लेते हैं, वैसे उसको हेड ग्रिप नहीं ले सकते हम लोग। ये सबसे बेटर, ये रेस्क्यूअर के लिए भी सेफ टेक्निक है और पाइथन के लिए भी सेफ टेक्निक है। आपका जो थंब है, वो पाइथन का जो स्पूल है उसके ऊपर रहना चाहिए, और जो चारों फिंगर जो है वो उसके नीचे आनी चाहिए। जो पूरा स्पूल का जो पार्ट है ना पाइथन का,
वो आगे रहना चाहिए पहली फिंगर के ऊपर, ताकि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकेगा। और दूसरा, उसको पकड़ने के बाद क्या करना है, या आप पोजीशन जो है उसका कैसे हेड ग्रिप लेना है वो देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो पोजीशन है ये करना है हमें। काफी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि हेड ग्रिप लेके उसको पूरा का पूरा जमीन से हवा में उठा के लटका देते। पाइथन का जो स्कूल है उससे उसका जो बॉडी का जो जॉइंट जो रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो वो जैसे अभी 7-8 केजी का या फिर 12-15 केजी का एनिमल को आप अगर उससे हेड ग्रिप लेके उसको हवा में उसी तरह से लटकाते हो, तो जैसे थोड़ी बहुत भी अगर वो ताकत लगाएगा ना, तो काफी चांसेस है कि उसका जो गले का जो पार्ट है जहां से उसका हेड का और बॉडी का जो जॉइंट रहता है वहां से वो जॉइंट चटक सकता है और एनिमल पैरालाइज होकर मर सकता है, और वो बहुत बुरी मौत मरता है वहां से। सो ये एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके तब तक उसको हेड ग्रिप की अगर आप ले रहे हैं तो हेड ग्रिप लेके उसका जो हेड का जो पार्ट है उसको आप नीचे की साइड रखिए, ना कि ऊपर की साइड। ये हुआ उसका हैंडलिंग का टेक्निक। और ये चीज ऐसी है कि आप स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप रख सकते हो, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको। बस ये हैंडलिंग का था। अब मैं देख लेता हूँ अगर टाइम रहता है मेरे पास तो फिर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो हम लोग अभी जा रहे हैं उसके साथ साथ। जल्दी जल्दी अपने पास मैं 5 मिनट, ये 5 से 7 मिनट तक टाइम लेके बोल सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो जल्दी जल्दी आप मुझे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम डज पाइथन रिक्वायर टू हंट इन अ मंथ। सबको पता है कि रेप्टाइल्स का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम ये मान के चल सकते हैं कि उसका जो कंट्रोल है वो उसके पास है कि लाइक वो उसकी जो स्पीड है उसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम सोचे तो जनरली पाइथन्स का जो हंटिंग का जो टाइम है या फिर फीडिंग का जो टाइम है उसमें ऐसा है कि हम लोग महीने से लेके 6-6 महीने तक तकरीबन कैप्टिविटी में तो एक लिटरेचर ये बोल लिटरेचर में एक चीज नोट हुआ है कि 2 साल के बाद पाइथन ने फूड लिया था, यानी कि 2 साल तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। और दूसरा एक चीज है कि जो फीडिंग का जो है वो पाइथन की एज, उसकी हेल्थ और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी चीज उसका मान के चलते हैं कि भाई जो अंडर वाटर पाइथन कब तक पानी में रह सकता है। तो मैंने 11 फीट का एक पाइथन था उसको 46 मिनट तक अंडर वाटर उसने सांस रोक के उसको ऑब्जर्व किया हुआ। और वही सेम सिनेरियो है कि भाई 6 से 7 फीट का एक स्पेसिमेन था या 6 से 7 फीट का पाइथन था, तो उसका एवरेज जो रहता है वो है कि 15 से लेकर 19 मिनट तक वो अंडर वाटर सांस रोक के वो रह सकता है। तो ये भी एक चीज है कि जो हम लोग एज ए रेस्क्यूअर अगर कहीं पे जाते हैं तो ये चीज है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं या फिर जान सकते हैं। और जब तक जितने भी क्वेश्चन है एज ए रिसर्चर या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी आपको एज ए रिसर्चर क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले आपका जो स्पीशीज है ना उसको पूछिए, वो डेफिनेटली आपको आंसर देगा जो भी क्वेश्चन है आपके। बस सिर्फ आपको यही करना है कि आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है या फिर उसको जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन पाइथन कॉन्फ्लिक्ट का जो केस है तो उसके अंदर क्या हो सकता है या फिर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर टेकिंग प्लेस। तो उसके अंदर जो मेन चीज जो है, तो उसमें मेनली जो चीज है कि अब तक जो पाइथन जितने भी लोग मारते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस बनते हैं ना, तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है। लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में ये एनिमल क्या है। और जो स्नेक चार्मर्स है या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं जो माइक्स जो काफी है जो पाइथन के साथ चलते हैं, काफी सालों से चलते आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको टारगेट करना है। और एज ए रिसर्चर आप जब भी लोकल कम्युनिटी या फिर आपका वर्किंग एरिया है वहां पर जाओ, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा
कि हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है या फिर हमारा जो साइंटिफिक मेथड है उसको बाजू पे रख दीजिए, और हमें उन लोगों के हिसाब से उनकी लैंग्वेज में सबसे पहले आपकी कम्युनिटी और उसको समझने की ट्राई कीजिए, या फिर उसको ये फील करवाना है कि ये बंदा जो बाहर से आया है ये हमसे ही बिलोंग करता है, हमारे बीच का ही है। तभी वो लोग खुलेंगे और उनके दिमाग के अंदर जो थॉट है आपकी स्पीशीज के रिलेटेड वो आपको जानने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। क्योंकि जब शुरू स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने वर्क किया था तो काफी केसेस में लोग पाइथन को देखते ही जिंदा जला देते थे, उसको मारते थे और छोटे छोटे पीस कर देते थे। और उन लोगों का मेंटालिटी था कि अगर ये हम लोगों को काटेगा तो क्या रहेगा कि जहां पर भी ये काटेगा तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सड़ जाएगा। फिर ड्यूरिंग रेस्क्यू उसके साथ साथ उन लोगों को जब हम लोग समझाते थे या मिलने जाते थे तो उनको पता चला कि हाँ ये लोग इतने टाइम से हमको ये चीज बोल रहे थे, चलो इसको इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। क्योंकि एक चीज है, जितना हम लोग पढ़ के वहां पे कम्युनिटी के बीच में जा रहे हैं वो लोग उतना एजुकेट या फिर अवेयर नहीं होते। तो सबसे पहले हमें उनके जैसा बन के उनके बीच में रहना पड़ेगा, और उसके बाद हम हमारा जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए आप में से कोई भी कभी भी हमारा जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे आ सकते हो। आप लोग वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को बोलोगे कि पाइथन मोलुरस किसे बोलते हो, तो वो लोग यही बोलेंगे हाँ पाइथन को बोलते हैं, पाइथन का साइंटिफिक नेम है ये या फिर जूलॉजिकल नेम है ये। इन लोगों को बाद में ये सब चीज ऐसी है कि जो वो लोग सीखेंगे या उनको पता चलेगा। अभी जो मॉनिटरिंग का जो हमारे पास डेटा रहता है तो उसमें 60% डेटा जो है वो लोकल फार्मर दे रहे हैं, उनके खेतों में जो पाइथन उनको साइट होते हैं उसके हिसाब से, और वो हम लोग ऑब्जर्व करते मॉनिटर करते हैं। और हर एक विलेज के अंदर हमारे पास अभी जो नेटवर्क है उसके अंदर 6 से लेकर 8 वॉलंटियरों का ग्रुप है, वो हर एक विलेज में एक्टिव है। तो सबसे पहला केस उन लोगों के पास जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है। तो ये जो काम पूरा का पूरा जो रहता है उसके लिए पूरा टीम काम करना पड़ता है, और एक टीम वर्क के साथ ही अगर काम करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा उसका। और कोई क्वेश्चंस अगर है तो फिर उसके लिए हाँ एक क्वेश्चन है, कैन वी आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल बाय इट्स आउटर लुक। मॉर्फोमेट्री डेटा जो है उसके हिसाब से अगर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये चीज लाइक वैसा है कि हाँ मैं श्योरली नहीं बोल सकता हूँ, पर जो अब तक का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है या फिर मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, मेरे जो करीबी दोस्त है उन लोगों को पता भी है क्योंकि हम लोग काफी बार ये एग्जाम एक दूसरे के लेते रहते हैं कि चलो फोटो से आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं कि ये पाइथन है मेल है या फीमेल है। और ऑलमोस्ट अब तक का 99% जो मॉर्फोमेट्री डेटा मेरे पास है उसका जो कैलकुलेशन है या फिर उसको एनालिसिस करके जो मैंने जो फैक्ट्स कुछ, तो उसके अंदर मेल पाइथन जो होता है उसका जो हेड का जो पोर्शन है वो थोड़ा नैरो होता है कंपेयर विथ फीमेल। फीमेल का जो हेड का पोर्शन है थोड़ा ब्रॉड रहता है, और जो अपर जॉ है या फिर अपर लिप है फीमेल का वो लोअर लिप को कवर करता है, यानी कि ऐसे रहता है। अपर लिप जो है उसका वो लोअर लिप को कवर करता है, और मेल्स में ये चीज नहीं होती है। और मेल्स का जो हेड का जो पोर्शन है वो एकदम शार्प होता है, फीमेल का शार्प नहीं होता, थोड़ा ब्रॉड रहता है। और उसके अलावा भी आप लोग जनरली फीमेल्स के अंदर जो स्पाइन हम बोलते हैं, जो टेल के पोर्शन के पास जो स्पाइन जो रहते हैं दो, वो फीमेल में डेवलप नहीं होते हैं ज्यादा, उतने होते हैं जरूर पर वो उतने डेवलप नहीं होते जितने मेल्स में होते हैं। तो आप उसके हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ज्यादातर ये चीज भी हो सकती है कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज फैक्ट रहता है कि मेल्स के जो स्पाइन्स है जो हेमिपीनियस के साथ में, तो वो काफी डेवलप रहते हैं, बड़ी साइज में मिलते हैं, तो वो मेल है, ये भी हम लोग मान सकते हैं। पर सबसे बेटर और बेस्ट टेक्निक है अगर जरूरत है तो एज अ रेस्क्यूअर अगर हम लोग सोचते हैं तो रेस्क्यूअर को मेल है या फीमेल है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको एक ही काम करना है, एनिमल को सेफली स्ट्रेस दिए बगैर रेस्क्यू करना है और उसको सेफली उसके एनवायरमेंट में वापस रिलीज करना है, वो मेल है या फीमेल। ये चीज हमको मान के चलनी है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सोचे तो ठीक है। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी 1 घंटा और 15 मिनट मैंने खींच लिया है। आशा रखता हूँ कि जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें आपको मजा आया होगा।
अभी कल का जो सेशन है बटरफ्लाइज के ऊपर, हमारा जो ग्रुप सर्कल जो है, फ्रेंड्स है, मयूर का कल लेक्चर है बटरफ्लाई के ऊपर, तो उसके लिए भी आप लोग जरूर रेडी रहिए। और कल मिलते हैं हम लोग फिर से 6 बजे। थैंक यू सो मच।